Good morning, dear students. Welcome back again in your computer class. Today, we are going to discuss one more program based on series. That means series using recursion. Let us look here. The question series is here 1 plus x raised to the power 1 divided by 1 factorial plus x raised to the power 3 divided by 2 factorial, then x raised to the power 5 divided by 3 factorial up to 2 to the power n minus 1 upon n factorial. Now can you see or can you identify the relation or a general pattern in this series? Pattern is what? At the lower part, that means in the denominator part, we are moving from 1, 2, 3 up to n. Means 1, 2, 3 up to n. ठीक है. Upper part में what we are doing is look at this part only, leave 1. On the upper part I am calculating x is same, in all the numerator part x is same, power is going to change. Now what is power? If value is n, so power is 2n minus 1. 2n minus 1. Now see, if I have written here 3 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर x की पावर 5 बन रही है. कैसे? ये बन रही है x टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 से. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 3. सो 2 इंटू 3 विल बी 6. 6 माइनस 1 इज 5. दैट मीन्स इट इज x टू द पावर 5. Look at next term, this. In this case, value of n is 2, suppose. If number of terms are 2, that means the value of n is 2. So at the upper part or the lower part, you are calculating 2 factorial. Upper part पे x की power 2n minus 1. इसका मतलब x की power 2 into 2 is 4. 4 minus 1 is 3 upon 2 factorial. यही हो रहा है. Got it? It means this power depends on the value of n and the relation is already given here. Relation is already given. To the power n minus 1 is there and the downside n. It means we have to run from 1, 2, 3 up to n. So we are going to start a loop from 1 that will run up to less than equal to n. लोअर पार्ट पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, अपर पार्ट में x की पावर कैलकुलेट करना है. ठीक है. और सम को हम कितना लेंगे, क्योंकि हम लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो लूप वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 to n. तो सम के अंदर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0 आई एम गोइंग टू टेक 1. आई एम गोइंग टू टेक 1. ठीक है. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट द लूप फ्रॉम 0. अगर आप सम को 0 ही लेना चाहते हो तो आप जब लूप स्टार्ट करोगे तो उसको 0 से करना. ठीक है. क्योंकि x की पावर 0 कितना, देखो x की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल बनेगा, ये है कि नहीं. तो x की पावर 0 कितना होता है 1 और 0 का फैक्टोरियल इज़ 1. 1 अपॉन 1 इज़ 1. तो इस तरीके से ये 1 आ रहा है. तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ऐसे ले सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो लूप को, या फिर सम में कितना ले सकते हो 1. ठीक है. नाउ रीड आउट द डिस्क्रिप्शन. वेरिएबल x n और सम. x इंटीजर, n इंटीजर, सम डबल. नेक्स्ट इट इज़ योर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट. It is your factorial function returning integer type of value and calculates the factorial of n. It is going to calculate the factorial of a number n. But here, see, it is not given using recursion. ठीक है. ये recursion based नहीं है आपका, एक्चुअली ये सिंपल है क्वेश्चन. इसमें recursion कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको सिंपल करेंगे फैक्टोरियल को. नेक्स्ट इज योर डबल टर्म int p, q. Double term int p, q. Calculate and returns the value of p divided by q factorial by making use of factorial. यानी कि फैक्टोरियल को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, इसको इन्वोक करना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट. क्या करना है आपको, सम कैलकुलेट करना है. ठीक है. और इसमें भी रिकर्शन नहीं लगाना है, सिंपल लूप का कंसेप्ट.
Then accept function to input the value of data member x and n. Display to display the value of data member sum. किसको डिस्प्ले कराना है? ओनली सम. कैल्क सम के अंदर क्या करना है? कैलकुलेट द सम ऑफ द गिवन सीरीज यूजिंग द एप्रोप्रिएट डेटा एंड अदर मेंबर फंक्शंस. गॉट इट? डेटा और मेंबर फंक्शंस का यूज़ करके सीरीज को प्रिंट कराना है. Should we start the solution now? You can take the screenshot to note down the question. Now let us start. Start the class, public class sum series. Then define the variables x, n, sum. Done. Next is make a constructor, default constructor, and assign x equal to 0, n 0, sum 0 or 0.0, whatever you feel suitable, and close the constructor. Then your next function is int factorial int n. आपको फैक्टोरियल निकालना है सिंपल मेथड से. तो फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक क्या होता है आपका? इसको ओपन करोगे फंक्शन को, इसी के नीचे लिखोगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, एंड नाउ टेक वन वेरिएबल इनसाइड दिस लूप. टेक वन वेरिएबल int fact is equal to 1. int fact is equal to 1 after the starting of this function. Now it will start from 1 to n. n में आ रहा है ना वैल्यू फैक्टोरियल की, n के अंदर आ रही है. ठीक है. अब यहाँ पे जो एक और चीज़, यहाँ पर जो ये वाला n है, दिस n एंड दिस n बोथ आर डिफरेंट बिकॉज हेयर दिस इज़ योर लोकल आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ योर ग्लोबल आर्ग्यूमेंट. अगर सेम है तो वो क्या करेगा? आपके ग्लोबल वाले को हाइड कर देगा. ठीक है. तो लोकल आर्ग्यूमेंट ही यूज़ होगा यहाँ पर n, ना कि ग्लोबल आर्ग्यूमेंट. मतलब क्लास वेरिएबल यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज़ होगा n की वैल्यू. सो इफ़ दिस देन फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i. यानी कि अगर आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो i की वैल्यू कितनी होगी? पहले 1, फिर 2, फिर 3. और फैक्ट के अंदर क्या करते रहोगे? यू विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग फैक्ट इनटू i, यानी कि 1 इंटू 1, देन इंटू 2 इंटू 3. इसको कैलकुलेट करने के बाद यू विल रिटर्न इट हेयर फैक्ट. देन योर फंक्शन विल गेट क्लोज्ड. राइट ओवर. नेक्स्ट, डबल टर्म int p कॉमा int q. इसको करने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दीज आर द ईजी वन. वॉइड एक्सेप्ट के अंदर वी नीड टू इनपुट द वैल्यू. सो व्हाट यू विल टेक, इसके अंदर आप अगर इनपुट या बफर रीडर जिससे भी प्रोग्राम बना रहे हो, सो यू विल राइट इनपुट स्ट्रीम रीडर, you will write buffer reader, you will write SOPL and enter the value, and then you will write n is equal to integer dot parseInt. Function will get closed. Okay. And after this you need to write, after the except function, you have to write here throws IO exception also. If you make the program using your input stream reader, if you will make using a scanner, then there is no need. ओवर. डिस्प्ले सम में आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, SOPLN अलॉन्ग विद द प्रॉपर मैसेज सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू प्लस ऑफ सम. फंक्शन क्लोज, फंक्शन ओपन. यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कैल्क सम क्या कर रहा है, सीरीज़ का सम कैलकुलेट कर रहा है. और एक है ये, तो कैल्क सम तो क्या कर रहा है,
सम कैलकुलेट कर रहा है, और एक है डबल टर्म जो कि क्या कर रहा है, कैलकुलेट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ p डिवाइड बाई q फैक्टोरियल। इसका मतलब p यहाँ पे क्या है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट यानी कि x की पावर 3 ऐसे, ठीक है, और फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है। नाउ सी हियर, टर्म क्या कर रहा है एक्चुअली, टर्म इज टेकिंग p वैल्यू एंड q वैल्यू एंड इनसाइड इट वी आर यूजिंग फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मुझे इसके अंदर इस टर्म का फंक्शन क्या है, सिर्फ इसमें मुझे p अपॉन q फैक्टोरियल निकालना है, इसको रिटर्न करना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, आई नीड टू राइट रिटर्न p एक्चुअली ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, मुझे सिर्फ फैक्टोरियल निकालना है, तो रिटर्न p डिवाइड बाई फैक्ट ऑफ q, ओनली दिस मच आई हैव टू, क्योंकि टर्म का मतलब वो सिर्फ ये कर रहा है, इंडिविजुअल टर्म को सॉल्व कर रहा है, इंडिविजुअल टर्म, जैसे कि x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न कराने का काम। जैसे कि ये भी एक टर्म है x की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके आंसर सेंड कर रहा है। तो यानी कि इस डबल टर्म का यूज़ क्या हुआ, सिर्फ q वाला जो टर्म है उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है, q का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है ये, ठीक है ना। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, p जो है वो सेम रहेगा, p की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, कैलसम के अंदर। यू गॉट माई पॉइंट। देखो p तो सेम है ना, जो p हमने यहाँ लिया है p, वही सेम यहाँ पे क्या है, p इज़ ऑल्सो हेयर, लेकिन q किस में कन्वर्ट हो रहा है, q फैक्टोरियल में। दैट मीन्स इन दिस फंक्शन, टर्म फंक्शन, वी ओनली हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ q. So I have written here this, but here some still mistake is there. Mistake is what, that p is integer, q is integer, and factorial is also written integer. It is factorial, sorry, make it factorial. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न होनी है किस टाइप की वैल्यू, डबल। सो बिफोर p इन द ब्रैकेट्स राइट एयर डबल, राइट डबल हेयर। गॉट माई पॉइंट। ओनली दिस वन स्टेटमेंट यू नीड टू राइट इनसाइड द टर्म फंक्शन, डबल p अपॉन फैक्टोरियल ऑफ q। तो इससे रिटर्न कर देगा p अपॉन q फैक्टोरियल। टर्म निकल गई हमारी पूरी। अब हम आते हैं कैलसम पर। कैलसम कैसे बनाओगे, देखो कैलसम में आपको लूप स्टार्ट करना है। अगर आपने सम 1 लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, सम 1 में 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने सम 0 लिया है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे लूप। सो फॉर नाउ आई एम एज्यूमिंग सम एज 1, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैंने सम को 1 लिया है। सो इंट i इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n and I plus plus. Then inside it I am going to take one temporary variable result res, और मुझे ऊपर की तरफ क्या करना है, पावर निकालनी है। तो math डॉट pow x की पावर कितनी निकालनी है, 2i माइनस 1। अगर n है तो 2n माइनस 1 होगा, तो हम i लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो कितना होगा, x टू द पावर 2 इंटू आई माइनस 1। पावर फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सम निकालना है, तो सम किस टाइप का है, देखो डबल टाइप का। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म ऑफ, टर्म कैलकुलेट करनी है ना, टर्म ऑफ ब्रैकेट में लिखना रेस कॉमा आई, रेस कॉमा आई। अब देखो जब टर्म हम कॉल कर रहे हैं तो टर्म फंक्शन दो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव कर रहा है। तो आई तो ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन रेस किस टाइप का है, अभी हमने रेस टाइप को डिफाइन नहीं किया, इसलिए क्योंकि रेस टाइप एक्चुअली में, क्योंकि मैथ डॉट पावर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये डबल टाइप की देगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, तो इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। डिड यू गेट माई पॉइंट। After that, closing, and because it is going to return, so I am going to write here return sum and the close of this function.
So int res is equal to int math dot power x कॉमा 2i माइनस 1. अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, मैं आपको उसकी वर्किंग बता देती हूँ जल्दी से. मैथ आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये क्या करेगा, x की पावर 2i माइनस 1. आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा ना, तो x की पावर 1 कितना आ गया रेस के अंदर, रेस में कितना आ गया x की पावर 1. और फिर हम लिख रहे हैं सम इज़ इक्वल टू, सम के अंदर ऑलरेडी कितना स्टोर है 1 प्लस टर्म ऑफ रेस कॉमा आई. तो रेस कॉमा आई का मतलब x की पावर 1 जो भी होगा और i की वैल्यू है 1, पास हो जाएगा x की पावर 1 और 1. टर्म के अंदर जब जाएगा तो वो p और q में कॉपी हो जाएगा. नाउ p विल बी सेम और q का क्या निकल रहा है, फैक्टोरियल निकल रहा है. तो एक्चुअली जब रिटर्न करेगा टर्म तो वो रिटर्न करेगा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, तो वो ऐड हो जाएगा सम के अंदर. तो सम में आ जाएगा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल. इन द सेम वे व्हेन वैल्यू ऑफ i विल गेट 2, तो वो क्या कैलकुलेट कर लेगा, पावर ऑफ x की पावर 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, यानी कि x की पावर 3. तो रेस्ट में नेक्स्ट नंबर कितना आएगा x की पावर 3. और फिर देखो हमने फिर से टर्म को कॉल कर लिया, तो अब कितना जाएगा x की पावर 3 और i की वैल्यू 2, यानी कि x की पावर 3/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा सम में. इस तरीके से अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा. फाइनली सम विल गेट कैलकुलेटेड एंड एट द लास्ट you need to print here this one sum series. ठीक है. then inside the main function which functions you will called now, एक तो आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा और मेन के अंदर आपको किसको रीड कराना पड़ेगा, x को और n को. इन दोनों को रीड करा लेना. सम सीरीज़ क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देना लोकल आर्ग्यूमेंट्स x और n को. उसके बाद में फैक्टोरियल तो कॉल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, इनसाइड दिस फंक्शन. सो मेन के अंदर ये कॉल नहीं होगा, मेन के अंदर ये कॉल होगा, डबल टर्म सम सीरीज़ कॉल होगा, एक्सेप्ट भी कॉल होगा, एंड द नेक्स्ट वन डिस्प्ले एंड कैल्क. अच्छा वेट फॉर अ मिनट, दिस इज़ नॉट पैरामीटराइज, सॉरी दिस इज़ नॉट पैरामीटराइज ना, इट इज़ योर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो आप x और n की वैल्यू मेन में रीड नहीं कराएंगे, आप एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करोगे, मेन में रीड मत कराना x और n की वैल्यू. तो आप इसका मतलब कैसे लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ. इसका पहले आप लिखोगे OB डॉट एक्सेप्ट, इससे पहले आप ऑब्जेक्ट बना लेना. यहाँ पर क्लास का नेम लिख के ऑब्जेक्ट बना लेना OB, ठीक है. फिर एक्सेप्ट फंक्शन कॉल कर लोगे. उसके बाद आपको कॉल करना है इसमें कैलसम, ठीक है. एक्सेप्ट भी हो गया, कैलसम भी हो गया. उसके बाद आपको कॉल करना है डिस्प्ले सम, दैट्स इट. बाकी दीज टू फंक्शंस नीड नॉट टू कॉल. क्यों, क्योंकि ये टर्म फंक्शन भी कॉल हो रहा है दूसरे फंक्शन में और फैक्टोरियल भी कॉल हो रहा है. सो ओनली दीज 3 फंक्शंस यू नीड टू कॉल इन द मेन फंक्शन. एंड हियर वी हैव completed our program. That's all for today's class. If you have any doubt, you can make it clear in your live class.